Good evening, everybody. Today is World Dissociative Identity Disorder Awareness Day. On this occasion, Feeling Minds is organizing a panel discussion to create awareness of this disorder. I take immense pleasure and privilege in introducing our August panelists here. Before I introduce our panelists, I'm Ambika Warrior and the moderator of this panel discussion on behalf of Feeling Minds. I would like to take this opportunity to introduce Dr. Chinu Agrawal, who is one of the most well-known psychologists and psychotherapists, and she's the director of Feeling Minds India. She has been working relentlessly in the field of value education for children, among various other workshops that she conducts across India and internationally. A very hearty welcome, Dr. Chinu. Thank you so much, Ambika. Thank you. Thank you, ma'am. The next is one of the well-known figures in child psychiatry, Dr. Shekhar Seshadri. He is a child psychiatrist and has been the director of NIMHANS, before which he retired, and he retired after 40 years of his service with NIMHANS. He not only worked with the clinical population while in NIMHANS, but also worked with childcare institutions and service providers across the country, as well as mental health interventions were included by him using theater and developmental approaches because he himself is an artist and a musician. So his work, as I said, is not just bounded in India, it spans across South Asia region. I know it's a very small introduction I'm giving about you, sir. Otherwise, probably I could go on and on about your introduction. A very, very warm welcome and thank you for being here. The next panelist is Dr. Tripti Sakhuja, who is a senior counseling psychologist in Delhi, and she's a faculty of psychology at Amity University. Dr. Tripti has immense experience in the field of counseling, and she's also one of my mentors. A very warm welcome, Tripti, ma'am. Thank you so much, and welcome, Dr. Shekhar, and thank you, Dr. Chinu, for giving this opportunity. I'm really happy for it. Thank you. Thank you, Ambika. Thank you. So without much ado, I guess I would just get into the questions. The first question is for all three of you. I would start with Dr. Chinu. Ma'am, what is DID or dissociative identity disorder? Thank you, Ambika, for the question. And the occasion that we are meeting today is actually the Dissociative Identity Disorder Awareness Day, which is being celebrated all over the world just to create awareness about this disorder, which is a much confused disorder, not only amongst the lay people, but also amongst mental health professionals. And hence, this day is very important because we get an opportunity to discuss exactly what is DID. So as the name suggests, it is an identity disorder where a person is having at least two or more, sometimes up to 100 different identities of himself or herself, and he behaves, thinks, and feels in that particular identity sometimes. So there is this host identity, one with which the person commonly identifies with, which also bears his original name. And there are different other alternate identities which are called as alter, जिनको alter कहा जाता है. एक host identity है और दूसरी alter identities है. तो इसको अगर layman language में समझना है तो हम एक कार की analogy ले सकते हैं. मान लीजिए there is a car जिसमें 4 लोग हैं. One is on the driving seat, one is on the seat besides the driver, that is the conductor seat, and 2 are in the passenger seat. तो 4 लोगों में से बारी बारी एक एक ड्राइविंग सीट पे आता जाता है. तो वो जो ड्राइविंग सीट पे है उसके थॉट्स, बिहेवियर्स
उसके हैबिट्स डोमिनेट करने लगते हैं उस वक्त के लिए। और इसमें बहुत कॉमनली ये भी देखा जाता है कि जब जो ड्राइविंग सीट पे है वो दूसरी आइडेंटिटीज जब वो कर रहा था परफॉर्म, उसके लिए उसको एमनेजिया हो जाता है। ही डजंट रिमेम्बर कि उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी में उसने क्या किया था। सो दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। Dr. Shekhar, I would like to hear from you as well. इसी बात को जो चीनू जी ने कहा, इसी बात को हम एक तरह से कुछ दूरदृष्टि से देखते हैं। डिसोसिएशन एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में थोड़ा हम फर्क समझ लेते हैं। इस सत्र में अंबिका जी, मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ ट्रॉमा एंड डिसोसिएशन का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अब देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी जो है, कई वर्ष पहले इनको ये ज्ञात हो चुका था कि ट्रॉमा और डिसोसिएशन के बीच में एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा रिश्ता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का सदमा जब पहुंचता है, खास करके छोटपन में, कोविड तो वर्तमान महामारी है। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव बीन एन एवरलास्टिंग एपिडेमिक। चाइल्ड नेग्लेक्ट, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, अटैचमेंट इंजरीज। तो छोटपन में अभिभावक के साथ संपर्क, संबंध और स्नेह किसी कारणवश टूट जाए और बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार हो, तो ये सदमा जो है, ट्रॉमा, एंड ट्रॉमा इज अलग संदर्भ में ट्रॉमा होता है। नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, डेथ एंड डाइंग, सुइसाइड, एक्सीडेंट, डिसफिगरमेंट, लॉस ऑफ लिम्ब, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। सो देयर आर मेनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रॉमा। तो सदमा जो है, इसके कई संदर्भ हैं। अब एक व्यक्ति किसी कारणवश अगर उस सदमे को झेल नहीं पाता है, आयु के वजह से, सोच की प्रक्रिया जो है और उसकी सहनशीलता जो है, वो अभी तक उसका विकास नहीं हुआ है, then and the conflict that it generates, मन में जो द्वंद्व, जो दुविधा और जो अस्पष्टता जो है, उससे जो कॉन्फ्लिक्ट तैयार होती है। सो डिसोसिएशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना जहां एक तरह से सोच, भावनाएं, व्यक्तित्व, क्रिया, ये सब में संतुलन और तालमेल जो है, ये बिखर जाता है। तो डिसोसिएशन के कई लक्षण हैं। डिसोसिएटिव एमनीजिया, भूल जाना, डिपर्सनलाइजेशन की डीरियलाइजेशन, मैं कहाँ हूं, मुझे कुछ ये पहचानी हुई जगह नहीं लग रही है, मुझे लगता है मैं किसी तरह से बदल गया हूं या बदल गई हूं, समझ में नहीं आ रहा है, या दिखाई नहीं दे रहा, हाथ नहीं चल रहा है, सो पैरालिसिस, डिसोसिएटिव कन्वल्शंस वगैरह। जब ये व्यक्तित्व के लेवल पे आता है, जैसे डॉक्टर चीनू अग्रवाल सुंदरता के साथ कहा कि एक प्राइमरी आइडेंटिटी है और चूंकि अपने कॉन्फ्लिक्ट को से वो झेल नहीं पाते हैं, और जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या अनमेट नीड्स हैं, उनकी जरूरतें जो हैं जो पूरी नहीं हुई है, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सुलझी नहीं है, उनकी चाह जो है वो उनके लिए असहनीय है, इट इज एंड इट मेक्स देम फील गिल्टी, एंड देन यू डिसोशिएट इनटू दीज आइडेंटिटीज। और जब आप प्राइमरी आइडेंटिटी में आते हैं तो फिर याद नहीं होता। तो इस तरह से कुछ लोगों के 2 आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ लोगों की 3 होती हैं, और कुछ लोगों के अनगिनत आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं। और तो सदमा, ट्रॉमा, डिसोसिएशन एक प्रक्रिया, और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में एक तिकोना रिश्ता है, और इस रिश्ते को पहचाना, ये इस आधार को पहचानना बहुत जरूरी है। ओवर टू यू अंबिका जी। थैंक यू सो मच सर। तृप्ति मैम। सो जब मैं ये सब सुन रही थी एंड मुझे जब आज ये टॉपिक पता चला, सो आई रिमेम्बर्ड अ बुक व्हिच आई रेड इन माय चाइल्डहुड, and that made so much of impact on me. And as soon as Dr. Chinu mentioned this disorder, I said, yeah, it is that novel. And I think you must have read, Dr. Shekhar.
That is Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Yeah. Yeah. So and that really एकदम मेरे को flash आया कि yeah, that was this. So this is a story of, it's a very interesting book and very, very deep rooted thoughts it gives you. So it is about a character who is a very renowned doctor, but at the same time, when he has this split personality, and when he comes to the other personality, he is a criminal. He goes and commits murders. And in the other time, he is a doctor, and which he doesn't even remember. So that is what amnesia is talking about. He doesn't remember his actions, his behavior, his thoughts, and he doesn't remember when he's in a criminal side. He doesn't remember the other thoughts. So, as Dr. Chinu talked about car, it was such a beautiful analogy. And if I was thinking about that analogy, so it really reflects that there is a discontinuity in the sense of self and sense of agency. कि मैं कार ड्राइव कर रहा था, वो मेरी एजेंसी है, लेकिन मैं सेल्फ से वो अलग हो चुका. So as the four drivers move and shift, their sense of self and sense of agency में discontinuation आता रहता है. And जैसे वो आपने attachment injuries बोला, that is such a relevant word for this, and that leads to एकदम a disruptive identity. I think जो attachment injuries से जो trauma face होता है, and whatever we experience, the person experiences and goes into amnesia also. So it leads to like a possessiveness. I think Indian culture में हम वहाँ पे भी इसको डॉक्टर शेखर लेके जा सकते हैं, like when वो माता आ जाती है हमारे ऊपर, and a lady doesn't remember कि क्या हुआ था मेरे साथ. So totally distorted identity is created. However, I would like to add one more point that so when I was recalling that book and all, I also remember that when I was in my childhood, I had an imaginary friend. जब मैं छोटी थी तो एक मेरा imaginary friend था जिससे मैं बात किया करती थी. I had named that Chandramukhi. But this is not that. This is not child imagery. If I think I'm two people, so I was Chandramukhi at times and I was Tripti at times. But this is not child imagery, and this is not the impact of substance. Even using some substance, we start imagining as someone else. So these are the two, I think, not associated with this disorder. So Tripti ma'am, since you said that, you had this Chandramukhi and Tripti coming and going, would DID be the same as multiple personality disorder? Yeah, because this was named earlier as multiple disorder, and now it has been named in DSM-5, in DSM 4th volume. It has been renamed as this, and it is also called as split personality disorder also. So 3 names for the same disorder. Yeah. Okay. And another interesting thing, Dr. Shekhar, that Dr. Tripti just mentioned was Mata ka आना, जिसको हम कहते हैं ना कि possess हो गए हैं. Is that also the same thing as DID, or is that something else where we say that somebody has been possessed by another person or another spirit, या भूत प्रेत या आवाहन किया गया है kind of stuff? Ambikaji, possession states are also a form of dissociation. We, of course, need to understand it from a cultural lens and perspective. Yeah. In fact, cultural formulations and cultural diagnosis अभी और अधिक जो है मनोशास्त्र के क्षेत्र में उनकी जगह बनी जा रही है. तो कई जगह ये पारंपरिक है, सांस्कृतिक है. जैसे साउथ में अयप्पा पूजा में आवेश में जो आते हैं उसी तरह से, तो उस समय ये संभव है कि किसी और का रूप धारण करके, चाहे वो देवी का रूप हो या किसी भगवान का रूप हो, तो अलग आवाज में कहना, तो एक तरह से देखा जाए तो इट इज अ वेरिएशन
of identity occurring in the context of certain, culture, contextualized, perhaps even culture-bound syndromes. So in सब में रिश्ता है, but traditionally dissociative identity disorder, as it is being increasingly recognized अंतर्राष्ट्रीय संशोधन में और अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर में, इसका जिक्र जो है ये बेसिकली अलग अलग आइडेंटिटीज है, जिसको पुराने जमाने में मल्टीपल पर्सनालिटी कहते थे। अधिकतर उस संदर्भ में डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पहचाना जाता है फॉर वेरियस अलग अलग अवधि के लिए। कुछ क्षण के लिए ही अलग आइडेंटिटी होता है, कुछ घंटों के लेवल पे, समटाइम्स इट मे लास्ट इवन फॉर डेज एंड वीक्स, and then you go back to your primary identity. तो ये उतार चढ़ाव जो है एक तरीके से और आइडेंटिटीज की शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है ये अक्सर देखा जाता है। बट इनवेरिएबली डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है वो सदमा और ट्रॉमा के संदर्भ में पाया जाता है, whereas पोजेशन स्टेट्स जो हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पाई जा सकती हैं, बट एक तरह से उसमें कल्चर बाउंड जो है, पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो है उससे संबंधित पोजेशन स्टेट्स जो है वो कई कल्चर्स में ये एक तरह से कल्चर बाउंड लेवल पे पाया जाता है। अंबिका जी। थैंक यू सर। मैम, डॉक्टर चिन्नू, this brings me to the next question in mind. Of course, Dr. Shekhar did mention about trauma as one of the main causes, but what would be the other causes for a person to have this disorder? So, Ambika, as Dr. Shekhar has been mentioning, trauma is, childhood trauma is seen in the history of 85% to 97% of all the cases of DID. So it is the primary cause which is being delineated, और genetic causes को अभी study किया जा रहा है, पर genetic causes अभी तक पाए नहीं गए हैं। तो trauma को हमें ऐसे समझना होगा कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको थ्रैश किया जा रहा है, मान लो कोई उसकी पिटाई करता है, कोई उसको बहुत गंदी तरह से ट्रीट कर रहा है घर में। अब अगर वो इस आइडेंटिटी में रहे जहां पर वो इतना परेशान है, तो वो अपनी लाइफ को आगे जी नहीं सकता है। सो ही टेक्स ऑन अनदर आइडेंटिटी। वो साइकोलॉजिकली क्या कर रहा है, अपनी इस थ्रैशिंग वाली आइडेंटिटी से डिसोसिएट कर ले रहा है, अलग हो जा रहा है, अलगाव कर ले रहा है, उससे ये अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दे रहा है और एक दूसरी आइडेंटिटी अपना के स्कूल चला जा रहा है। Where in this identity now he doesn't remember about that thrashing. So this is actually, this begins as a coping mechanism. और क्या है कि 9 साल तक कहा जाता है कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो फॉर्म हो रही है, उसका सेंस ऑफ सेल्फ फॉर्म हो रहा है, वो इंटीग्रेट हो रहा है, पर इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से उसका वो सेल्फ इंटीग्रेट ही नहीं हो पाया, वो डिसइंटीग्रेटेड सेल्फ है, मल्टीपल डिसइंटीग्रेटेड सेल्फ्स। और 3 चीजें जो शेखर जी ने इतनी सुंदर तरीके से बताई, जो प्राइमरी केयर गिवर है उनके साथ संबंध, संपर्क और स्नेह, तीनों में से किसी का टूट जाना। मान लो my son, as you know, is studying in Christ University, Bangalore, and he has taken up psychology and English. So उसके ब्रिटिश इंग्लिश में एक नॉवेल है ऑलिवर ट्विस्ट, एंड ऑलिवर ट्विस्ट इज अ सागा ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, यू नो। सो ये जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, यही इसके मूल में पाया जा रहा है। और इसी से हमें पता लग रहा है कि देखो, सही तरीके से पेरेंटिंग करना सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नोइंगली अननोइंगली
अगर हम अपने ही बच्चों को इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से एक्सपोज कर देते हैं तो उसका कितना खामियाजा उन्हें अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ सकता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर तो एक एक्सट्रीम डिसऑर्डर है, पर इसके अलावा भी चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से कितना कुछ सफर करना पड़ सकता है। शेखर जी इसके एक्सपर्ट है, he will be able to tell us more about it. Yes, surely I would like to hear that, sir. तो इसको हम और दो तरीके से देखें। चीनू जी ने जो बात शुरू की, इसको हम और विस्तृत तरीके से समझते हैं। देखिए, जब तृप्ति ने DSM-5 की बात की थी और DID की बात की थी, DSM-5 में एक और कैटेगरी आया है जिसको हम कॉम्प्लेक्स PTSD कहते हैं। PTSD का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कॉम्प्लेक्स PTSD की परिभाषा यही है कि PTSD की जो सिम्टम्स थे, फ्लैशबैक्स, एंजाइटी, एरोजल वगैरह, साथ साथ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन का PTSD के साथ संबंध जो है, इसको हम कॉम्प्लेक्स PTSD कहते हैं। तो जो बात डॉक्टर चीनू ने कही थी कि सदमे की तीव्रता और डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की तीव्रता में संबंध है। जितना दीर्घ सदमा होगा उतनी ही सिवियर डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होगी। अब इसको एक मिसाल के तौर से देखते हैं। उसी बच्चे की बात करते हैं जिसने एक बार, जिसके साथ क्रूर बर्ताव हुआ, माता या पिता या किसी चाचा ने या किसी दोस्त ने उसको बड़ी बुरी तरह से मारा। तो ये संभव है कि क्रोध के साथ, खौफ के साथ या घबराहट के साथ, या ये दोनों का मिश्रण जो है, इसके साथ ये बच्चा जो है, शायद 7 साल का है, शायद 5 साल का है, शायद 9 साल का है, अपने मन में ये सोचने लगता है कि मैं फलाना शक्तिशाली हूं, अब मैं इस पे हावी हो जाऊंगा। और ये एक कल्पना जो है, ये जो फैंटेसी थियरी की जो बात हो रही थी, दिस इज नॉट इमेजिनेशन, बट शुरुआत जो होती है, जो ट्रॉमा थियरी की तरफ हम जाते हैं, किस हद पे आके या किस लेवल पे आके ये एक तरह से स्विच बन जाता है कि वो एराउजल के टाइम वो पर्सनालिटी जो है, वो शक्ति वाला, वो उभर के आता है, और ये मतलब खूब क्रूर मारपीट होता है, और फिर लोग उसको संभालते हैं और फिर बोलते हैं, तेरे को हो क्या गया है? मुझे कुछ याद नहीं है, क्या हुआ, कुछ क्लिक हुआ, उसके बाद मुझे याद नहीं है कि, लेकिन तुम जो थे वैसे थे ही नहीं यार, तुम तो किसी और आवाज में बोल रहे थे, तुम्हारा बर्ताव तो बिल्कुल पहले जैसे नहीं था। ये हुआ एक मामूली थ्रैशिंग के लेवल पे। देखिए कैसे इस तरह का सदमा किसी के मानसिक संतुलन पे किस तरह से प्रभाव करता है। अब किसी व्यक्ति के साथ लगातार शोषण होता हो, लगातार यौन शोषण हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, कई व्यक्ति के साथ, रिचुअल अब्यूज है, सैटेनिक अब्यूज, इसकी कई प्रक्रियाएं हैं और कई रूप हैं, and some of them are become really sick. So when they get traumatic to that extent, where the mind cannot contain and assimilate, उतनी सब्र नहीं, उतनी सहन शक्ति नहीं है कि इस लेवल का सदमा जो है, और उससे जुड़ी हुई कभी शर्म है, कभी गिल्ट है, कभी भय है, कभी खौफ है, और बिल्कुल मन इतना विचलित होता है और मन में इतनी विडंबना है कि जब मन संभाल नहीं पाता है, then you dissociate because it is protective. It's a protective mechanism. तो ये एक तरह से सुरक्षा कवच जो बन जाता है, then it becomes a pattern of identity, and then it becomes more and more pathological. जैसे अगर अभिभावक के पास आपको स्नेह संपर्क संबंध का अनुभव नहीं मिला, ममता नहीं मिली, वात्सल्य नहीं मिला, तो इधर उधर खोजते हैं, you get into damaging relationships, and then you get into high risk behaviors,
यू एज्यूम अ डिफरेंट आइडेंटिटी। और फिर कई लोगों ने मुझसे कहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, यौन शोषण हुआ था, लगातार हुआ, और कामुकता के बारे में मतलब इतनी कंफ्यूजन थी कि अब पता नहीं कहाँ जाके क्या गड़बड़ा गया। लोग कहते हैं कि तुम्हें हम वहां पाए, हमने तुम्हें पुकारा, तुमने हमें पहचाना ही नहीं। फिर ऐसा चलता गया, 6 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा, और सडनली मुझे एहसास हुआ एक दिन जब मैं होश में आए, किसी कमरे में थी किसी व्यक्ति के साथ, और मुझे मालूम नहीं ये व्यक्ति है कौन, मैं यहाँ आई कैसे, लेकिन इसके साथ मेरा संबंध हो चुका था। अब तीव्र लेवल पे इस तरह के लक्षण भी होते हैं। तो ये एक चौखट होता है पहचानने का, और यही आधार होता है अंबिका जी ट्रीटमेंट के लिए भी, कि पहले हम देखते हैं इमोशनल एराउजल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सुरक्षा के बारे में, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, उसके बाद हम ट्रॉमा मेमोरीज, ट्रॉमा वर्क, सदमे के बारे में, और किस तरह से हम जो भी टेक्निक्स हैं फॉर ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर एंड हीलिंग सेंटर्ड एंगेजमेंट, और उसके बाद फिर आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। तो ये 3 लेवल्स जो होती हैं डीआईडी में, सुरक्षा से संबंधित, इमोशनल रेगुलेशन एंड कंट्रोल, फिर ट्रॉमा वर्क, मेमोरी वर्क, जो सदमा हुआ उसका जो भी मानसिक तौर से उसका जो प्रभाव है उसको पहचानना, और फिर इंटीग्रेशन की तरफ पहुंचना। तो अगर 7 आइडेंटिटीज हैं, 8 हैं, तो उसको 8 से हम 6 कैसे करें, हाउ डू वी मर्ज दीज, फिर 6 से 4 कैसे करें, और फिर ये इनको हम इंसाइट जो है, एक तरह से सूझ कि जो भी हो रहा है इनके साथ, फिर वो 4 को हम 2 कैसे करें, फिर अल्टीमेटली 2 को मर्ज करके वो एक जो था, और फिर वो समेट के फिर संपूर्ण तरीके से उनको ये ज्ञात होता है कि ये हुआ मेरे साथ और ये मेरे रूप थे, लेकिन सब मैं ही हूं। ये अगर सफल कहानी हो, अक्सर कहानियां सफल नहीं होती, इसमें और भी चीजें होती हैं, सेल्फ हार्म बिहेवियर्स, कटिंग बिहेवियर्स, सब्सटेंस यूज, मादक पदार्थ का सेवन, कई इस तरह के हाई रिस्क बिहेवियर्स भी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ पाई जाती हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण भी होते हैं साथ साथ। तो इन सबको भी पहचानना और इनका उचित चिकित्सा करना भी जरूरी होता है। अंबिका? सर, मैं ये चिकित्सा के बारे में भी पूछना चाहूंगी, पर उससे पहले एक और सवाल है आपके लिए सर। क्या ये हिस्टीरिया से रिलेटेड है, या हिस्टीरिया जैसे है, या हिस्टीरिया ही है? अंबिका जी, हिस्टीरिया शब्द जो है आजकल उसका उपयोग नहीं होता है। पुराने जमाने में आपको याद होगा तृप्ति जी DSM 54321 की बात कर रही थी, उसी तरह से वो अमेरिकी सिस्टम है, उसी तरह से जगत के अन्य देशों में हम लोग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, अभी 11वीं उसका एडिशन है, तो 10, 9, 8, 7, 6 वगैरह जो था। तो एक जमाने में हिस्टीरिया शब्द का उपयोग लोग करते थे, खासकर कि जब फ्रॉइड वगैरह का काम हुआ। लेकिन चूंकि हिस्टीरिया शब्द का मूल जो है वो यूट्रस से आता है, तो जैसे जैसे तब्दीलियां और प्रगति होती गई क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में, तो इसको हम जजमेंटल और पीजोरेटिव मानते थे कि क्यों केवल इसको हम महिलाओं का रोग माने, ये सत्य नहीं है। तो हिस्टीरिया शब्द को ऑफिशियली जो है हमारे क्लासिफिकेशन कोर्स से निकाल दिया गया है, और हिस्टीरिया का परिवर्तन हुआ डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स। और डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स कई तरह के हैं, डिसोशिएटिव एमनीजिया, डिसोशिएटिव कन्वल्शंस, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वगैरह। और आज के सत्र के सिलसिले में हम लोग डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये शब्द जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है, इसका हम उपयोग आजकल नहीं करते हैं। थैंक यू। हिस्टीरिया के संबंध में जो वर्ड यूज हो रहा है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर हो रहा है। वहां पर इसको ऐसे देख सकते हैं कि डिसोशिएटिव डिसऑर्डर जहां पर फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कह सकते हैं, जहां पर फिट्स आना या आंखों से दिखना बंद हो जाना या एक हाथ सुन्न पड़ जाना या इस तरह के जब फिजिकल चल नहीं पाना,
चल नहीं पाना, तो वो कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स ऐसे करके कहते हैं उनको। जी, थैंक यू। अगला सवाल जो है वो ट्रीटमेंट पे बेस्ड है, वो मैं डॉक्टर शेखर के पास सबसे आखिर में आऊंगी उसके बारे में पता करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है उनके पास एक पिटारा ही होगा हम सबको बताने के लिए। मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर तृप्ति से। मैम, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर DID? तो एज आपने बिल्कुल राइटली बोला अंबिका कि डॉक्टर शेखर के पास पिटारा है, सो व्हाट एवर मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड या ट्रॉमा, तो जो डॉक्टर साहब ने अभी बड़े अच्छे से बोला कि हमें संबंध भी, अगर कोई संबंध, संपर्क और स्नेह डॉक्टर चीनू ने बोला, तो इनसे रिलेटेड जो ट्रॉमा हुआ उसका हमें मैनेजमेंट करना है, वो एक अलग ही प्रोटोकॉल होगा। लेकिन अगर मैं एक साइकोलॉजिकली बात करूं तो बेसिकली जो ये इसमें होता क्या है कि थॉट्स जो है डिसरप्टिव हो गए, बिहेवियर डिसफंक्शनल हो गया, एंड जैसे डॉक्टर शेखर ने बोला कि इमोशन सबसे ज्यादा यहाँ पर अनहेल्दी इमोशंस हो गए। तो अगर हम इन 3 कैटेगरीज को ध्यान रखते हैं तो कॉग्निटिव थेरेपीज इसमें बहुत इफेक्टिव होती हैं, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी एसोसिएटेड होता ही है। तो कॉग्निटिव थेरेपीज इसमें बहुत इफेक्टिव होंगी, क्योंकि CBT की अगर मैं बात करती हूँ तो उसका मेजर गोल क्या है? टू लुक आफ्टर दी थॉट्स एंड द बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर अगर हम बात करते हैं तो थॉट्स एंड बिहेवियर, बट वो थॉट्स जो हैं हमारे वही लिंक्ड है टू आवर इमोशंस एंड टू आवर बिहेवियर। सो जो थॉट्स डिस्टॉर्टेड हो गए, डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट्स आता है बिकॉज ऑफ द हेल्पलेसनेस ऑफ द पेशेंट। ही डजंट इवन नो कि ये सब क्या हुआ। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मुझे तो नहीं मालूम कि वो मेरी आवाज बदल गई थी और मेरा कुछ हो गया, लेकिन एक इंटरनली डिसोसिएशन से जो डिप्रेशन आता है एंड जो एक मिसमैनेजमेंट ऑफ थॉट्स आ जाता है, उसकी वजह से, so when we use CBT, so the major goal of CBT is to make the client understand the validity of thoughts the person is having, a sense of self, and then the distortion of the thoughts. So इसको कहीं ना कहीं फिर हम अगर thoughts से link करते हैं तो cognitive restructuring helps in it, and emotional में हम unhealthy emotions से healthy emotions की तरफ उसको लेके जाना चाहेंगे, तो REBT का रोल भी जैसे आ जाता है। And behavioral experimentation, they are also very important in this. So a lot of strategies we use so that a person is able to focus on the problem solving behavior and decision making for himself. And इसके लिए हम कई strategies use कर सकते हैं, जैसे role playing, then Socratic questioning, imagery, guided supervision and behavioral experimentations. And वहाँ पे link टूटता नहीं है because the type of homework is given then, so एक link associated रहता है non session days also. So all these combined will help the person to come out of the come to the awareness of that my thoughts are important in my emotions, my physiological responses and my behavior, and then how to restructure those thoughts, and then how to make my behavior functional from dysfunctional. So all this combined will help the client, help the patient. Yeah. Chinu ma'am. Yes. So as Dr. Shekhar mentioned, the 3 levels of treatment, इसको हमको ऐसे देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजी के पास अब पॉट पावरी है, and all these therapies that are there with us can be used on all these 3 levels. Pehla, to put in place the safety protocols for the person who has had so much of trauma in his childhood. तो सेफ्टी एस्टैब्लिश करने के लिए जो हम थेरेपीज यूज करते हैं उसमें है
रिलैक्सेशन टेक्निक्स या माइंडफुलनेस टेक्निक्स या फिर इमोशनली फोकस टेक्निक्स, जहाँ पर सूदिंग, सेल्फ कंपैशन, कंपैशन फोकस थेरेपी वाली, जहाँ पर सूदिंग और सेफ्टी, थ्रेट सिस्टम से हम सेफ्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और उसको सूद कर रहे हैं। फिर सेकेंड लेवल में जहाँ पर हम ट्रॉमा की बात करते हैं कि हम ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं, हम ट्रॉमा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो अभी तक तो जो आपका क्लाइंट है वो ट्रॉमा को फेस ही नहीं कर रहा था, कन्फ्रंट ही नहीं कर रहा था। तो उसको कन्फ्रंट करवाने के लिए, ट्रॉमा को वो कन्फ्रंट करे, इसके लिए हमें कुछ बहुत ही डेलिकेट टेक्निक्स हमको डीबीटी में मिलती है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में, जो बेसिकली पहले बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए इजाद हुई थी, पर उसको देख रहे हैं रिसर्च में कि वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में भी काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि उसमें जो एक फैक्टर है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस का, वो यहाँ पर डील हो पा रहा है। सो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, एंड देन पर्सनालिटी को इंटीग्रेट करने के लिए देन वी go to CBT, as Dr. Trupti said, and some psychodynamic therapies like psychoanalysis and hypnotherapy, and all these therapies have also been researched, and they have seen they are known to be effective in the treatment of DIT. Thanks, Dr. Shekhar. तो एक मोटा चौखट का मैं जिक्र करता हूं, और फिर उस चौखट के इर्द गिर्द और उसके बीच में बारीकियां जो हैं उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, ये ट्राइफेज ट्रीटमेंट मॉडल का कि जब हम बात करते हैं तो पहले लेवल पे सुरक्षा की बात हुई, और जो भी सिम्टम्स जो हैं, नींद नहीं आ रही है या तनाव है या बेचैनी है, उसको कैसे कम करना, बेसिकली स्टेबलाइजेशन। दूसरे लेवल पे है जो सदमा हुआ और सदमे से जुड़ी हुई यादें जो हैं, उसको हम कैसे प्रोसेसिंग करें और उसका हम इलाज किस तरीके से करें। और तीसरे लेवल पे है शख्सियत जो है या व्यक्तित्व, उसको हम कैसे संभालें, जिसको हम लाइफ इंटीग्रेशन और सेफ्टी प्लानिंग कहते हैं। तो ये जो फेज ओरिएंटेड ट्राइफेजिक जो है, तो पहले स्टेज में एक रिश्ता बनाना, गहरा रिश्ता क्लाइंट के साथ, जिसके जरिए सुरक्षा, स्टेबलाइजेशन और सिम्टम रिडक्शन हम कर सकते हैं आयु के अनुसार। क्या आप 11 साल के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, या 18 साल की युवती, या 30 साल के मर्द हैं, और एक तरह से भरोसे का एक वातावरण पैदा करना, और डीआईडी के क्लाइंट को एक तरह से एक संपूर्ण व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना, जिनकी ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटीज हैं। तो ये पहला फेज जो है, ये कभी कभी काफी लंबा चलता है। इसकी अवधि जो है, इसके बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, और कभी कभी इस फेज में वापस आना जरूरी होता है। इसकी वजह यह है कि जो भी सदमा पहुंचा है, इस चोट से जो दर्द होता है, और इन लोगों में भावनाओं को झेलने की क्षमता जो है, और भावनाओं को रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है। और तो इसके कई तरीके हैं स्टेबलाइजेशन के, तो समझाना, एजुकेशन, ग्राउंडिंग है, सोमैटिक थेरेपीज हैं जैसे बॉडी रेगुलेशन और इमेजरी, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ हार्म, एडिक्शन और अनसेफ रिलेशनशिप्स को कम करना, इसकी रिडक्शन जो है। यहाँ से फिर हम आते हैं फेज 2 पे, जहाँ हम डायरेक्टली ट्रॉमेटिक मेमोरीज के साथ काम करते हैं। तो यहाँ जितने भी ऑल्टर्स हैं थेरेपिस्ट के असिस्टेंस के साथ, तो हम ऑल्टर्स को एनकरेज करते हैं रिव्यू करने के लिए। तो इनके साथ जो हुआ भूतकाल में, इनके साथ जो शोषण, जो अत्याचार हुआ, जो अब्यूज हुई, उसके बारे में समझना, उसके बारे में बात करना। तो इसमें जब हम ट्रॉमेटिक मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, चाहे वो आप EMDR के साथ करें, या जैसे डॉक्टर शुनी कह रही थी कि साइकोडायनामिक हो या न्यूरो फीडबैक के साथ हो,
लेकिन बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा ज्यादा काम बाल और किशोर मनोरोग क्षेत्र में हुआ है, तो हम खेल, आर्ट, नैरेटिव्स, इनका उपयोग, एक्सप्रेसिव थेरेपीज जो कहते हैं, इनका हम उपयोग काफी करते हैं। और तीसरा फेज जो है, जिसमें आइडेंटिटी इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, टुवर्ड्स मोर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग, तो इसमें रेगुलेशन एक्टिविटीज जो हैं, तो काफी चीजें हम इसमें करते हैं। रिस्क रिडक्शन, अपने आप को सुरक्षित हम कैसे रखें, अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है, बातचीत करने की क्षमता। तो ये तीनों स्टेजेस में कुछ कॉमन इंटरवेंशंस हैं, साइकोडायनामिक हो सकती हैं, फैमिली सिस्टम्स के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये हो गई एक चौखट, लेकिन इसके बीच में कुछ बारीकियां हैं। और ट्रीटमेंट जो भी हो, चाहे वो डीबीटी हो, चाहे EMDR हो, भरोसा पैदा करना, डेवलप ट्रस्ट। हर ऑल्टर के साथ, पर्सनैलिटी के साथ कम्युनिकेट कीजिए। कॉन्ट्रैक्टिंग, एक तरह से हर पर्सनैलिटी स्टेट की जरूरतें जो है उसके साथ काम करना। इंटरपर्सनैलिटी कम्युनिकेशन ऑल्टर्स के साथ, अचीविंग इंटीग्रेशन, साथ साथ नेटवर्किंग, सोशल स्किल्स, और इसके साथ जो भी प्रभाव हुआ है, जो भी गेन्स हुए हैं, उसको कैसे जोड़े। तो इस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि अंतिम लक्ष्य जो है हमारा, वो ये है कि अंतिम लक्ष्य है इंटीग्रेशन, और हर ऑल्टर को ये समझना कि वो एक संपूर्ण व्यक्ति का भाग है। और ऑल्टर्स के नाम जो है वो हम केवल एक कन्वीनियंट लेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लाइसेंस नहीं देते हैं कि वो इररिस्पॉन्सिबल ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करें। हर ऑल्टर को हम न्यायपूर्वक और समानुभूति के साथ बर्ताव करते हैं, और ऑल्टर्स को हम ये भी कहते हैं कि एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेशन के साथ और समानुभूति के साथ काम करें, एंड एट ऑल टाइम्स सदमा जो है उसकी तीव्रता को मद्देनजर रखते हुए टू ऑलवेज बी जेंटल एंड सपोर्टिव। तो ये कुछ चीजें हैं अंबिका जी जो वी कीप इन माइंड टू लुक एट बोथ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइफेसिक मॉडल और इसके इर्द गिर्द और बीच में जो बारीकियां हैं उसको कैसे पहचानना। ओवर टू यू अंबिका जी। इसमें मेडिकेशन का क्या रोल है सर? चिनू जी, अगर एजिटेशन बहुत सीवियर है या कोमॉर्बिड बाइपोलर डिसऑर्डर है, रिस्क बिहेवियर्स बहुत ज्यादा हैं, कुछ क्वाजी साइकोटिक सिम्टम्स हैं, तो जुडिशियस यूज ऑफ मेडिकेशन। बिकॉज सत्य तो ये है कि जब कोई इंसान डूब रहा हो, वो समय नहीं होता तट पे खड़े होके उसको तैरना सिखाना। आपको डूब के उसको पहले बचाइए, तैरना बाद में सिखा सकते हैं। So sometimes containment techniques, either through imagery, relaxation, journaling, diary writing, and judicious use of medication is necessary before you can go to memory work and trauma work. Yes. तो शुरुआत में आप पूछने लगे क्या हुआ तेरे साथ, सब बताओ, किसने मारा, कैसे मारा, कहाँ मारा, कितना चोट लगा, तो फिर it is overwhelming. So that is why gentleness, ये एक नजाकत जो है, एक नाजुकपन जो आवश्यक है, दरकार है इस तरह के कंडीशंस में, दिस कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। ये जो आप एक सेकंड, ये जो डॉक्टर साहब आपने जेंटलनेस की बात करी थी, सो इम्पोर्टेंट। आई रिमेम्बरिंग एक इस डिसऑर्डर से एसोसिएटेड एक केस हुआ है जिसमें एक क्लाइंट को साइकेट्रिस्ट वाज आस्किंग बार बार कि क्या हुआ था, बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, एंड शी सेड हाँ मल्टीपल हुआ था, एंड एक्चुअली इट वाज नॉट द रियलिटी। बाद में शी सूड द साइकेट्रिस्ट एंड गॉट द कॉम्पनसेशन आल्सो, आपने पढ़ा होगा। सो इट इज दैट सो सेंसिटिव एंड डेलिकेट, आपने बिल्कुल सही बोला, राइट। Yeah, I was also coming to that, the gentleness, और वो जो आपने कहा the therapeutic alliance, to have that trust, कितना important हो जाता है। And especially sir, you have worked with the most sensitive age group, I guess.
children and adolescents, it must be so difficult for them to understand what happened to them in the first place. And then how their coping or the defense mechanism became so strong that it brought in those altered people into them. एक और चुनौती अंबिका जी इसके साथ ये भी है कि जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, खास करके कम उम्र के बच्चों के साथ जिनके साथ सदमा हुआ होता है, and the beginnings of dissociation. अब this is a debatable question कि dissociation सबसे कम किस उम्र में हो सकता है? क्या 4 साल के बच्चे में संभव है कि identity disorder हो जाए? That maybe not in the classical sense, but children, preschoolers can also dissociate. Preschoolers, 5-year-olds can also dissociate that. तो और खास करके सदमा अगर कामुकता से जुड़ी हुई हो, यौन शोषण के संदर्भ में, one of the biggest challenges is language. भाषा कहाँ है? क्या बोले, किसको बोले, कैसे बोले, कितना बोले, कभी-कभी भाषा भी नहीं होती है. तो the importance of language in doing memory work is also exceedingly important to keep in mind. It was such a wonderful discussion. We could probably, or I could probably ask, but I guess since this is an awareness platform that we're trying to build so that people become aware of what are the possibilities of the past that could have upon us, I would just like to say thanks from the bottom of my heart to each one of you for taking this time out and having this wonderful discussion. And yes, looking forward to such many more discussions with each of you. Thanks a lot. And thank you very much. And please do have a look at the website of the International Society for the Study of Trauma and Dissociation, ISSTD. It's a very generous website. It's a niche organization of people who are dedicated and serious about the relationship of trauma and dissociation. Sure. Thank you very much for this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.